السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہم شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس سے۔ جی السلام علیکم جنید صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے پریس کانفرنس کی اہمیت کا پہلے ذکر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ انتہائی اہم نوعیت کی ہے، تو میں نے کہا میں بتا دوں پہلے۔ جی ہاں، انتہائی اہم اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر 2-3 دن اور گزر جاتے تو پھر بھی اس بات کی اہمیت نہیں رہنی تھی۔ بات کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو عید مبارک کہنا چاہتا تھا۔ یہ عید مبارک کہنا یہ سب سے اہم بات تھی؟ جنید صاحب، آپ بے شک بڑے سینئر صحافی ہیں، مگر آپ وہ صحافی ہیں جو قلم اپنی جیب میں لگاتے ہیں۔ جو قلم ادھر کان پہ لگاتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ کسی سیاستدان کا صحافی کے لیے عید مبارک کہنا کتنا سخت اہم ہوتا ہے۔ سارا سال ان کے ذہن میں ادھر پھنسا رہتا ہے کہ اس نے مجھے عید مبارک نہیں کہی، اسے کہیں نہ کہیں میں نے تروڑنا ضرور۔ سر یہاں پینسل صحافی نہیں لگاتا، ترخان لگاتا ہے۔ غوری صاحب، آپ بھی بڑے بھولے آدمی ہیں، اور جس طرح ترخان کا کام ہے نا چھلائی کرنا، اسی طرح جو صحافی ادھر پینسل لگاتا ہے نا، وہ بھی خبر میں دوسرے کی چھلائی کر دیتا ہے۔ جی ہاں، بزدار صاحب خیریت تو ہے؟ آج اخبار نویسوں پہ اس قدر سیخ پا؟ نہیں جنید صاحب، سیخ پا اللہ معاف کرے کس لیے ہونا ہے، میں تو بڑی محبت کا اظہار کرتا ہوں صحافیوں کے ساتھ۔ میرا بڑا پیار ہے صحافیوں سے، وہ تو میں نے غوری صاحب کو ایسی وضاحت کیا کہ بیچ میں صحافی کئی ڈاڈی طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پیار محبت سے وقت گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں صرف عرض یہ کرنی چاہ رہا ہوں آج پریس کانفرنس میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی گورنمنٹ کی گاڑی چھکا چک بڑی ودیا چل رہی ہے۔ صحیح، چھکا چک ٹرین چل دی ہے، گاڑی کائیں نہیں۔ ہاں، ٹرین تو وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے۔ جنید صاحب، پنجاب کی گاڑی اللہ کے فضل سے گھر بڑی ودیا چل رہی ہے۔ یہ کون سی گاڑی ہے جو گھر چل رہی ہے؟ جنید صاحب، پنجاب کی گاڑی صرف 2 سیٹوں والی، اچھا، ایک بزدار اور دوسرے میرے خان صاحب۔ اچھا، تیسرا بندہ اس گاڑی میں انوالو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے پیچھے بیٹھ کے گائیڈ کر رہے ہیں مجھے میرے وزیر اعظم۔ اچھا بزدار صاحب، اکثر آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں 2-3 مہینے بعد آیا ہوں آپ کے پروگرام میں، وہ مخالفین لبے نہیں ہیں جو کہتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مجھے اس متھے تو لگاؤ بندے کے جو آپ کو کہتا ہے، کہتے آپ خود ہیں اور ڈال کسی اور پہ دیتے ہیں۔ میری عرض تو سن لیں حضور۔ آپ حکم کریں، میں جان قربان، مگر یہ بات سدھی کیا کریں، مخالفین نہ کہہ دیا کریں۔ سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جنید صاحب، بزدار کا تو مخالف کوئی راہ ہی نہیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے سارا پنجاب بزدار کی گھوڑیاں گانی شروع ہو گئی۔ زبردست۔ اچھا، میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ کے مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ پنجاب کی گاڑی پہ صرف 2 ہی بندے سوار ہیں، آپ یہ بات ثابت کرنے پہ اس قدر تلے ہوئے ہیں، اس قدر مگن ہیں کہ جناب میرا رول ہے پنجاب میں، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ ہر روز بیوروکریسی میں تبادلوں کا ریلا لے آتے ہیں۔ اب پھر سن رہے ہیں ہم کہ آپ دوبارہ بڑے پیمانے پہ بیوروکریسی کو، پولیس کو اور بڑے بڑے افسران کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جنید صاحب، آپ نے شعر تو سنا ہوگا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میں صرف بیوروکریسی کو اس لیے پلٹتا جھپٹتا رہتا ہوں کہ ذرا خون گرم رہے اس کا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عوام کا خون تو گرم نہ کرے۔ جنید صاحب، یہ سب کچھ عوام کے لیے ہی کرتا ہوں۔ جو بندہ کام نہیں کرے گا وہ بزدار کی حکومت میں سیٹ پہ نہیں رہ سکتا۔ بزدار صاحب، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جو آپ مخالفین پھر اے بندہ سیدھی گال کیوں نہیں کر رہا؟ میری بات میں زیادہ سیدھی بات کرتا ہوں۔ آپ کو یہ شک ہے کہ جو پچھلے چیف سیکرٹری اعظم سلیمان صاحب کے منظور نظر افراد تھے یا ان کی مرضی سے جن کی تقرریاں ہوئی تھی، اب آپ ان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں؟ بے شک وہ ٹھیک ہی کام کر رہے تھے، وہ ایمانداری سے کام کر رہے تھے۔ میری بات سنیں جنید صاحب، جب کام لینا ہوتا ہے نا تو پھر اپنے بندے بٹھانے پڑتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جب نون لیگ والے آتے ہیں تو سارے نون لیگ ہی آفیسر آ جاتے ہیں سامنے۔ تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے کسی کو پی ٹی آئی کا افسر کبھی بنایا ہی نہیں، نہ کبھی سمجھا ہے۔ مگر جو آدمی میرے لیے کام کا نہیں ہے، میں اس کو اٹھا کے پرے پھینکوں گا اور اپنے کام کا بندہ وہاں پہ بٹھاؤں گا۔ لیکن حضور لوگ پھر باتیں کرتے، لوگ باتیں نہیں کرتے، تو کرے نہ تو
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یہ تو بات میں نے مائک سے ہٹ کے کہی ہے، آپ کو آواز کیسے گئی؟ بہرحال جنید صاحب، میرے ساتھ بندہ وہی چل سکتا ہے جو وسیم اکرم پلاس ہو، آئی مین آل راؤنڈر ہو، ہر فن مولا ہو۔ سرفرین نو رکھو چیف سیکٹری، ایک کڑدا بھی بہت ودیا جے، ہانڈی بھی پکا لیندہ ہے، سر بھی بڑا ودیا چسدا جی، اور ساری اتوار والے دن کپڑے دھونے والی مشین بھی لا لیندا جی۔ اور نہیں ہے بھائی، اتوار دی میں چھٹی کرنا ہے جی۔ اور سر وسیم اکرم پلس ہے نا، کوفتے بالکل گول بناتا ہے اور بال کرکٹ بال جتنے بناتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے تو بات کو مذاق میں ڈال دیا۔ آئی ایم ڈیم سیریس جنید صاحب، مجھے بندہ وہی چاہیے جو ہر فن مولا ہو۔ ابھی میں نے ایک ضلع میں ڈی سی لگایا ہے، اچھا، مچھردانی اتنی تیز لگاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت مچھردانی کی ڈانگوں نے چارپائی کے پاویوں کو کلاوا ڈال لیا۔ مچھر کو بھی نہیں پتا چلتا؟ جی جنید صاحب، مچھر کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی، حالانکہ آپ صاحب جانتے ہیں کہ مچھر کی تو روٹی روزی کان کے قریب ہے۔ ادھر ہی وہ بیچارہ گھون گھون کر کے اپنا رزق کماتا ہے۔ سر ایک آپ سے سیاسی سوال کرنا تھا، مچھر کے اپنے کان ہوتے ہیں؟ سر یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کل مچھر اس کے گھون گھون کر رہا تھا، یہ جواب میں گھون 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 کر رہا تھا اس کو۔ دیکھیں بات آپ گھون گھون تک لے گئے ہیں، حالانکہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام کرے گا وہی رہے گا، جو نہیں کام کرے گا اس کی چھٹی ہوگی۔ آپ کے دعوے اپنی جگہ، لیکن سر آپ کے مخالفین او یہ یار کہتے ہیں، کیڑے مخالفین حکومتیں تے لوا منڈے، کان پاک گئے نے منڈے مخالفین سن سن۔ اچھا چلے ساری بات میں خود کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیوں منیا کہ نہیں؟ اے ہندی ہے سیاست۔ یہ تو سچ ہے یہ صحیح۔ میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ نے جس افسر کو تبدیل کروانا ہوتا ہے، آپ عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور اس کی جگہ جو بندہ لے کے آتے ہیں وہ زیادہ نون لیگ کا ہوتا ہے۔ جنید صاحب، جو وزیر اعظم صاحب ہے نا، روزانہ 10 کلومیٹر واک کرتے ہیں، وہ کانوں کے اتنے کچے نہیں ہیں۔ جو بندہ 10 کلومیٹر واک کرتا ہو وہ تو سار سے لے کے پاؤں تک لوہے کا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کانوں کے کچے نہیں ہیں، ان کے تو کانوں کے پاس مچھر بھی آ کے گھون گھون کرتا ہے تو انہوں نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ جا کر لے جتنی مرضی گھون گھون، میں بچپن سے سن رہا ہوں تیری گھون گھون، ساری رات گھون گھون تو اخیر وڈنی تو ایڈی کو دندی ہوتی ہے۔ اچھا سر، آپ کی اینٹی کرونا پالیسی پر شہباز شریف صاحب نے بڑی تنقید کی ہے۔ دیکھیں بی بی، شہباز شریف صاحب صرف اندر بیٹھ کے باتیں ہی کر سکتے ہیں، جی عملاً انہوں نے کیا کیا ہے؟ عملاً اللہ کے فضل سے آپ کا یہ خادم ہی نہیں، خادم تو لفظ ہی مجھے منع ہے۔ ہاں جنید صاحب، ایک مجھے خادم منع ہے، ایک مجھے پالک منع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے جتنا کام میں نے کیا ہے، اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے کرونا کے حوالے سے کام نہیں کیا۔ سر پہلے کرونا آیا ہی نہیں، تو اس میں کرونا کا قصور ہے، میرا قصور تو نہیں۔ نہیں یہ تو ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے، بلکہ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں، نہیں سوری مخالفین نہیں کہتے، بلکہ آپ کے ہو گیا سدھا ہو گیا۔ آپ کے حمایتی یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جیسے لوگ اندر بیٹھ کے نا ڈر کے، ان کے کسی رشتہ دار کی باہر لڑائی بھی ہو رہی ہو نا تو اندر سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی قبر کے نیچے ایک جگہ پہ پھوڑا ہے، وہاں پہ مکہ مارو، وہاں مکہ مارو۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اللہ کے فضل سے باہر نکل کے لڑ رہا ہوں کرونا سے۔ گرمی دے ویچ صحیح۔ ہاں بلکہ میں تو اتنی گرمی میں کرونا کے گھر تک پہنچا ہوں، میری اس کے بچوں سے بھی بات ہوئی ہے، میں کہا پیو نو باز کر گنو، ورنہ میں 2 پمپ مارے تھے، حال کر دے پھروں کے سارا ٹبر۔ بزدار صاحب، اتنی گرمی ہو گئی ہے، یہ گرمی سے بھی نہیں مرے گا کرونا؟ گرمی سے اس نے تو پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں، بندے بے ہوش ہونے شروع ہو گئے۔ بڑی کڑاکے کی گرمی آ گئی ہے جنید صاحب، میں تو آپ لوگوں سے بھی کہوں گا بلکہ ساری قوم سے کہوں گا کہ گرمی میں بڑی احتیاط کریں۔ املی آلو بارے کا شربت ذرا دھڑا دھڑ کھینچ کے رکھیں۔ کھینچ کے رکھے کیا مطلب؟ وہ کھینچ کے بناتے ہیں نا جی، ایسے کر کے اس کو جتنا اونچا کریں اتنی اس کی تاثیر بڑھتی ہے۔ تو ذرا کپڑوں کا بھی بندوبست کر کے رکھے۔ یہ تو خیر سمجھدار آدمی ہے غوری صاحب، یہ تو شروع سے ہی سردیوں والے کپڑے پہنتے ہیں۔ آپ ایسے باہر نکلیں تو چھتری بھی لے کے نکلا کریں، کیونکہ پہلے بھی دھوپ نے آپ کے ساتھ کو گھاٹ نہیں کی۔ وہ
ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੋਣਾ है। गौरी साहब गाने अल ध्यान न दियो, गर्मी अल ध्यान दियो, बहुत बढ़ गई है। जी सर, ऊपर से लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। ये सारा पिछली हुकूमतों का किया धरा है, किसी ने एक टके की बिजली नहीं बनाई, इसलिए लोड शेडिंग खत्म ही नहीं हो रही। तो आपकी हुकूमत ने जो दावा किया था बिजली बनाने का, एक टके की बिजली नहीं बनाई। देखिए बिजली बेशक हमने नहीं बनाई, मगर हमारी हुकूमत गर्मी का तोड़ निकाल रही है। अच्छा। हमने हर सड़क पे, हर चौक में, हर मोड़ पे इमली आलू बारे के शरबत की रेडी लगवा देनी। फिर वो शरबत पी के आवाम गाती फिरेगी, बिजली बनी है मेरे अंग अंग से। जुनैद साहब आपको बातें आती हैं, आप अमीर आदमी हैं। आप तो एयर कंडीशन चला के बड्डी निकर पा के तो ठंडे फर्श से लम्बे पड़े। ये पूछिए आप गरीब लोगों से, ये मुझसे पूछे जुनैद साहब, मुझसे। मेरे मुतल्लक तो वजीर आजम साहब शुरू से कह रहे हैं कि बुज़दार उस पासमानदा इलाके से है जहाँ बिजली भी नहीं है। मेरा ख्याल आप इसीलिए नहीं बिजली बना रहे कि आपके कायद झूठे न पड़ जाए। जुनैद साहब मेरे लिए सारा पंजाब ही तौसा है, मैं पूरे पंजाब को एक ही आंख से देखता हूँ, ऐसे। खुदा के लिए दोनों आंखों से पंजाब को देखें, पंजाब के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ। ये भी मुखालफी नहीं कहते हैं या तुम खुद कह रहे हो? ये तो वाकई सिद्धा हो गया। जी हाँ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इसका जो एक जत्था है आम तौर पे 80 करोड़ से 1 अरब टिड्डियों पर मुश्तमिल होता है और वो एक दिन में 10 करोड़ किलो खुराक खाता है। भाईजान, हर तरफ जहाँ जाओ एक ही मौजू ज़ेर बहस है, बल्कि ईद की छुट्टियों में भी आपने एक ही बात सुनी है, कोरोना 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 कोरोना। अच्छा, कोरोना से भी एक बड़ा खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है। अल्लाह रहमत करे यार, को अच्छी खबर सुनाना। दुआ करो कि अल्लाह ताला वतन अजीज में अच्छी खबरें सुनने को मिले जान। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बिल्कुल फैक्ट्स पे बेस कर रही है बात कि कोरोना से यकीनन कई गुना बड़ा खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है। बिल्कुल मैं तुम्हें संजीदगी से बता रहा हूँ और आदाद शुमार की बुनियाद पे बता रहा हूँ, और वो ख़तरा जो है वो कोई बहुत दूर नहीं है, वो 1-2 महीनों की बात है। जून में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खदशा है। अल्लाह ताला हमें उस खदशे से, ये खदशा गलत साबित हो और हम इससे महफूज रहें, पाकिस्तान को कहत का सामना करना पड़ सके। और उसकी वजह कोरोना नहीं है, उसकी वजह टिड्डी दल है। अगर आपको याद हो, हमने 24 जनवरी को अपने शो में जिक्र किया था कि अगर हंगामी बुनियादों पे, बल्कि फौजी बुनियादों पे हमने इक़दामात ना किए तो अगले चंद माह के बाद पाकिस्तान को इंतहाई खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। 3-4 महीने बाद इसके हमलों की शिद्दत में और तादाद में इजाफा होगा। अभी तक जो है इस हमले में 2 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें तबाह हो चुकी हैं और 10 लाख एकड़ से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है, और जो अभी तक का नुकसान हो चुका है वो 50 अरब रुपए के लगभग है, और कहा यह जा रहा है कि ये 100 अरब रुपए से तजावज कर जाए। खुदा न खास्ता हमारी फसलें बर्बाद होती हैं, चारे पे बहुत ज्यादा हमलावर होता है, तो 22 करोड़ लोगों के लिए खुराक का मसला तो है ही है। करोड़ों की तादाद में जो हमारे मवेशी हैं उनके लिए चारा कहां से आएगा? हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है स्प्रे। हवाई जहाजों के जरिए स्प्रे। और वही हुआ, पहला खदशा भी दुरुस्त साबित हुआ कि जिन इदारों के जिम्मे ये लगाया गया था या जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कि इसका नोटिस लें, उन्होंने नोटिस नहीं लिया। और दूसरा खदशा भी बेनही दुरुस्त साबित हुआ हमारा कि उसने उतनी ही तबाही मचाई है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। पिछले 15 दिनों के दौरान, जरा गौर से सुनिएगा गौरी साहब जी, पिछले 15 दिनों के दौरान सिर्फ जनूबी पंजाब में टिड्डी दल ने 60,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। 15 दिनों में। और पिछले 9 महीने के दौरान, दोबारा ज़रा रिपीटेडली मैं अपने नाजरीन से भी दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा आपकी तवज्जो का मतकाजी हूँ ताकि सूरत हाल की संगीनी समझ सकें कि पिछले 14 माह के दौरान ये टिड्डी दल वतन अजीज़ में 900 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर चुका है, फसलें खा चुका है। मेरे अमाल का ना इधर टिड्डी है
تو دیکھو یار اربوں کا نقصان ہو گیا. نہیں تو اس کا کوئی حل دوسرے ملکوں کے پاس نہیں ہے جو یہ کاپی کر لیں ہم لوگ؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے، یہ ایک اگر سٹیج نکل جائے تو پھر اس کا حل واقعی نہیں ہے. اور اگر حال ہے بھی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس نقصان کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، اس کا بالکل خاتمہ نہیں کر سکتے. اب ہم اسی سٹیج پہ ہیں. لیکن اگر آپ بر وقت ہوش کے ناخن لے لیں تو پھر اس کے نقصان سے قطعی یعنی 100% بھی بچا جا سکتا ہے. لیکن یہ کام کون کرتا ہے؟ بار بار میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں، زندہ قومیں کرتی ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں وہاں پر بھی ٹڈی دل حملہ آور ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ ایکڑ کو کلیئر کر لیا ہے. انہوں نے ڈرون کے ذریعے سپرے کیے اور کسانوں کو، کاشتکاروں کو ٹرین کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو ٹڈی دل کا خطرہ نظر آتا ہے آپ نے از خود سپرے کرنا ہے. ہم نے کیا کیا ہے، اس وقت عرض کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہے منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کی. اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کے نیچے ایک ادارہ آتا ہے جسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن. یہ بنیادی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے جس کا ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا جو گڑھ ادارہ ہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کا ادارہ ہے، جو کسی نہ کسی حوالے سے نہیں، ہر حوالے سے پاکستان نے اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو اس میں وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے کرنا ہے، جہاں پر کرپشن کے سوا ہے ہی کچھ نہیں ہے. اور ہم اس بات کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کرونا میں سے پاکستان نے کوئی اپنے لیے اکنامک اپرچونٹی تلاش کرنی ہے تو پاکستان کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے کہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر پر زور دے. اور ان دونوں چیزوں پر اگر زور دینا ہے تو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن یا منسٹری آف فوڈ سیکورٹی ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن عالم یہ ہے حکومت کی سنجیدگی کا کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں پچھلے 15 برسوں سے ایک بھی ریگولر ڈی جی نہیں آیا. یار جس کا نام ہی نہیں کسی عام بندے کو پتا وہ کیا ڈپارٹمنٹ ہوگا. ڈپارٹمنٹ تو اپنی کارکردگی سے یاد ہو جاتے ہیں. یہ پلانٹ پروڈکشن مجھ سے قسم چکا لو جب بھی سنا ہم نے تمہارے منہ سے ہی سنا. بہت سارے میرے ویورز کے لیے یہ ایک حیرت کی بات ہوگی کہ یہ جو پلانٹ پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ پری پارٹیشن ہے، یہ اب کا نہیں ہے، یہ تقسیم سے پہلے کا ادارہ ہے. اس وقت اس کی واحد ذمہ داری جو ہوتی تھی وہ ٹڈی دل کا خاتمہ ہوتا تھا. ٹڈی دل کا خاتمہ اس طرح ہوتا تھا کہ جو مختلف ملک ہوتے تھے وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے تھے. تو یہ جو 18 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو 14 مہینے ہو گئے پاکستان آئے ہوئے، تو اس نے جب یہ ایران کی طرف سے آیا تھا تو اس نے صحرا میں جب انڈے دیے تھے اس وقت بھی لوگوں نے چیخے تھے لوگ باقاعدہ کہ یہ ایک بڑی مصیبت بننے جا رہا ہے. تو 1.5 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے اس کام کے لیے. اور ایک ہی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ اس کو لاروا سٹیج پہ ختم کر دیں. اس کی مصیبتیں اس کی ہم ڈیٹیل اس وقت بھی بتا چکے کہ کتنی منحوس قسم کی چیز ہے یہ. اس پر 14 مہینے ہو گئے اسی طرح. ہاں 14 مہینے ہو چکے ہیں پاکستان میں. پاسپورٹ بن گیا. اور یہ دیکھیں یہ آسمان کو کور کر لیتا ہے. یہ 1 کلومیٹر کے علاقے میں غوری صاحب 1 کلومیٹر کے علاقے میں اتنا اناج کھا جاتا ہے جتنا 35,000 بندہ کھاتا ہے. 35,000. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کہ 1 کلومیٹر کے علاقے میں ٹڈی دل کا ایک جتھا اتنی خوراک کھا جاتا ہے جتنے 35,000 لوگ کھاتے ہیں. کیا بھائی یہ بانٹتے ہیں ہمیں بدنام ہوئے. اچھا پھر یہ اس کا جو ایک جتھا ہے عام طور پہ 80 کروڑ سے 1 ارب ٹڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ ایک دن میں 10 کروڑ کلو خوراک کھاتا ہے. 10 کروڑ کلو. یار یہ تو ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہے. اپنے وزن سے دگنی خوراک کھا جاتا ہے. خاتمہ تو پھر لاروے کا کرنا چاہیے. اس کی خاتمہ لاروے کا کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے. لیکن جتنے وسائل ہیں ان کا بر وقت استعمال نہیں کیا گیا. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ بدترین صورتحال سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی بھی آج بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے جس سنجیدگی کے ساتھ ہم کرونا کا کر رہے ہیں یا کرونا سے خوفزدہ ہیں. اس سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی یہ چیز ہے کہ جون میں جا کے، کیونکہ آگے برسات آ رہی ہے، برسات میں یہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہیچ کرتا ہے اور زیادہ انڈے بچے دیتا ہے اور یہ
मुसीबत हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जमीन के अंदर अपने अंडे देता है। एक जो टिड्डी है वो 80 बच्चे दे देती है। अच्छा सर, कोई स्प्रे के अलावा और कोई इलाज नहीं है इसका? स्प्रे के अलावा 1-2 इलाज हैं इसके कि आप बर वक्त किसानों को मुतनब्बे करें और फिर वहां पे जहां पे इन्होंने अंडे दिए हैं वहां पे हल चला दें, हल चला दें और फिर स्प्रे भी करें साथ। लेकिन असल बात यह है कि मुल्क एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, आप कोई माने या ना माने, लेकिन इस सूरत हाल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी 18वीं तरमीम पर भी आयद होती है। वो कैसे जी? इस मुल्क के करता धर्ताओं से कोई पूछे कि कितना अरसा हो गया है कि वफाकी सेक्रेटरी बराए ज़राअत ने सूबाई सेक्रेटरी ज़राअत के साथ मिलकर कोई मीटिंग की हो, कोई स्ट्रेटजी तय की हो, सिर्फ इसी पे नहीं दीगर मामलात पे भी, और सिर्फ ज़राअत पे क्या, तालीम पे देख लो कितनी मीटिंग्स हुई हैं। ये जब से हमारा राब्ता टूटा है हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यार एक उसने को 25 साल पहले एक ड्रामे में कहा था, जब वड्डा स्पीकर जो आवाज पहुंचांदा सी ते निक्के कड्डन दी की लोड़। तो निक्के स्पीकर कड के उन्हां दी तारां कड छड़ियां ने, जिन्नी देर तक आवाज इकट्ठी नहीं होएगी दुनिया ते किवें फैले, वो यही था। अच्छा सर, ये टिड्डी दल मुल्कों मुल्कों फिरता है, पाकिस्तान से कब निकलेगा? ये एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 साल मजीद लगेंगे पाकिस्तान में और इसकी आबादी में 6 गुना मजीद इजाफा हो जाए। अब बात यह है कि अगर ये मुसीबत आ गई है तो मैं जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि इसके नुकसानात का जो लेवल है उसको कम करना पड़ेगा। बिल्कुल खात्मा मुमकिन नहीं है। 2 साल और उसके बाद फिर इसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएं जिसके लिए आपके पास इदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान में टोटल 10 जो है वो तैयार हैं स्प्रे करने के लिए इन डिपार्टमेंट्स के पास। और यार मैंने सुना है कि ये सब्जा खाता है, आई मीन सब्ज चीजें खा लेता है ये, तो ये जो भैंसों का चारा होता है वो अगर खा गया तो भैंसों बेचारी जो है वो क्या सिगरेट पी के तो दूध देंगी। ये सबसे बड़ा खतरा है। मतलब हम लोग आमतौर पे कहते हैं चले जी अगर वो कपास खा लेगा तो थोड़ा सा क्राइसिस आएगा, अगर फलां चीज है तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। आप चारा कहां से इंपोर्ट करेंगे? घर घर में लोगों ने बेचारों ने बकरियां और मवेशी पाले हुए हैं, उनका चारा कहां से लाएंगे, क्या करेंगे? अब टिड्डी दल को तो नहीं पता कि मैं इंसान की खुराक खा रहा हूं या भैंस की खुराक खा रहा हूं, उसने तो खा जानी है। देखो जरा ये हमारी हुकूमतों की सुस्ती और बेपरवाही की वजह से क्या जुल्म हो रहा है। किसान बेचारे मस्कीन जो छोटे किसान है वो तो बिल्कुल ही मारे जाते हैं ना, बड़े भी मारे ही जाते हैं। जाहिर है वो कौन सा को थोड़ा जिहा खा के निकल जाता है। मैंने एक वीडियो देखी है उसमें एक किसान बेचारा तरले ले रहा है और माफिया रब से मांग रहा है और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। वो देखी नहीं जाती वीडियो। हाँ जी, अपने सामने वो अपना फसल तबाह होते हुए देख रहा है, तो वो बेचारा आहो बका ही कर सकता है और क्या। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी या प्लांट प्रोटेक्शन वालों से पूछो ना कि जी आपने क्या किया है, तो वो बड़े आराम से कह देते हैं जी हमें जितने पैसे मिले थे ना वो एनडीएमए वालों को दे दिए गए। अब एनडीएमए वालों को कितने मिले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एनडीएमए वालों को स्पुर्द की जिम्मेदारी की भी गई है तो वो तो 2-3 महीने पहले की गई है ना, उससे पहले आप इतने महीने कहां सोए हुए थे, ये इस पर जवाब दें। अच्छा सर, मैंने ये वीडियो देखा जिसमें ढोल बजा कर है ना टिड्डी दल को उड़ा रहे हैं, कोई थालियां बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। भाई वो भी एक टोटका है, लेकिन आप ढोल बजा के एक खेत से उड़ा के दूसरे खेत में भेज देंगे टिड्डी दल को, नुकसान तो उसने करना ही करना है। फायदा ही नहीं ढोल बजाने का, तुम कोई और बिजनेस कर लो। कह रहा था कि टिड्डी दल दौड़ाने के लिए जो ढोल बजाते हैं गवर्नमेंट से हमें वो ठेका ही ले दो। इसके फैमिली वाले इतने एक्सपर्ट हैं, सारों ने ढोल बजाया है टिड्डी दल दौड़ाने के लिए, तो टिड्डी दल ने आगे से डांस शुरू कर दिया। तो जुनैद साहब ये मरेगा कैसे? तेरे पैर थले आके। इसका एक ही तरीका है कि उस वक्त मारा जाए जब ये लार्वल स्टेज पे होता है, जब ये जमीन के अंदर होता है, अंडे बच्चे और लार्वा बन रहा होता है, जब इसके पर निकल आते हैं ना, अब इसके पर पुर्जे निकल आए, ये उड़ना शुरू कर देता है, फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन वो एक स्टेज होती है जब वो जमीन के अंदर है, वहां पे आप स्प्रे करके हाल चला के जैसे भी है इसको उस स्टेज पे खत्म कर सकते हैं और वो स्टेज जारी रहती है। इस वक्त तो ऐसा अजीबोगरीब वक्त है कि मेरा ख्याल है कि इसकी जो 3-4 लाइफ की स्टेजेस हैं सारी पाकिस्तान में मौजूद है। लार्वा भी है, बड़ा भी है, अंडे भी हैं, सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान में उसी स्टेज से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला बस महफूज रखे हमारे वतन को। बाकी बड़ा जुल्म है ये, इस तरह की सुस्त रवि से इतना बड़ा नुकसान जो है ईमान से, ये बड़ा ही अफसोसनाक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
प्यारे बच्चों जी अस्सलाम तुम्हें वालेकुम। सबको पता ही है कि बीवी क्या है। बीवी एक परिंदा है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले जब क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको वेलकम किया जाता हाँ है। जी। तो आपकी क्लास में हमारे ये बहुत ही मासूम प्यारे तालिब इल्म आए, हाय। इनको वेलकम करें। Sir, he has a fault. What? When any other student shut the book and he pissed in book. सर इनका इस्तकबाल ना करवाएं, इनका इलाज करवा लें। बल्कि सर इसके लिए दुआ कराएं। बड़ा कमजोर हो गए। सर अब लेक्चर शुरू करें, ये लोग जोक से बाज नहीं आते। मैम, why अच्छा। are you laughing continuously? It is very bad. I am English student. ये स्कूल की प्रिंसिपल है। She is? Oh my God. अच्छा आज हम मुहावरे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुहावरों की वजह तस्मिया डिस्कस ठीक। करेंगे। आपने एक मुहावरा बहुत ज्यादा सुना होगा, दाल में काला होना। सर इसने बहुत ज्यादा सुना। मैंने तो खाया भी है दाल में काला। मेरा ख्याल दाल नहीं खाई आपने, सिर्फ दाल में से काला निकाल के खाया। अच्छा दाल में काला, आपको मतलब तो इसका पता ही होगा क्या सर मतलब ये दाल में से काला निकालता नहीं है, दाल के पास खड़ा होता है, काला खुद निकल के इसके पास आए। यार मेरी तालीम ना खराब करो, मेरे कैरियर का मसला है यार। अच्छा यार सीरियस हो जाओ प्लीज इसने नया कैरियर लगवा लिया। यार, प्लीज सर सीरियस हुआ करो सर यार। एक दिन इन्होंने दाल पकाई है, उसमें गिर गया, तो वहां से ये मुहावरा बना, दाल में काला। अच्छा यार प्लीज सीरियस हो जाओ। अच्छा आपको इसका मतलब तो पता है ना, दाल में काला होना? जी सर। मुझे नहीं पता। जी सर, कोई मतलब इसका मतलब ये है कि अगर चंद लोग बैठे हुए हैं तो उनमें कोई काला हो तो उसे कहते हैं कि दाल में काला है। सर कोई गड़बड़ है, कोई डाउट है? हाँ ये देखे काले ने, सॉरी दाल में काले ने बताया, असल बात बता काले ने दी, बताया। दाल में काला है। वाह जी ये कोई डाउटफुल बात है, कोई मशकूक मामला है इसमें जो नजर नहीं आ रहा। और उस वक्त कहा जाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, लेकिन जो वजह जहन में आती है वो नहीं है इसकी वजह। इसकी जो वजह तस्मीर है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। अच्छा। माजी में जब हिंदो पाक में खास तौर पे बहुत ज्यादा गुर्बत वक्त दाल में ये काली मिर्च और ये जो मुख्तलिफ कीमती मसाला जाते हैं ये नहीं डाला जाते थे, सिर्फ सुर्ख मिर्च और नमक से काम चलाया जाता था। और अच्छा। अगर कोई लौंग, जीरा, काली मिर्च वगैरह कोई भी इसमें मसाला। दाल में डालता था तो लोग कहते थे कि इसके पास पैसा कहाँ से आया इतना, कि ये दाल में इतनी इसने कीमती दाल में काला चीजें है? डालनी है तो इसके दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो ये काला जो है ये कीमती चीज के तौर पे इस्तेमाल होता था। इसका दिलचस्प बात मतलब ये है है। तुम्हारे अब्बू के पास कहाँ से पैसा आया? यार दाल में काला है, आल में काला नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा सर दाल में काला तो होता है, तो दाल कोई भी हो सकती है, चने की, माश की, कोई भी? नहीं, हर दाल का बखरा काला होता है। अच्छा जी दूसरा मुहावरा जो है वो भी दाल से मुताल्लिक ही है। लो जी, अज दाल ते ही गुजारा करो, मैंने लगता है अज मंगल बुध है। अच्छा जी इस मुहावरे का ताल्लुक भी फिर गुर्बत से ही है। दाल ना गलना, किसी की दाल ना गलना। इसका जाहिर है मतलब मेरा ख्याल बच्चे बच्चे को पता है कि किसी का काम ना होना, ठीक है ना, यानी वो कोशिश कर रहे हैं हमारी नहीं उसकी दाल नहीं गलने गल वाली, रही। जैसे कहते हैं। हाँ किसी की दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पे किसी का काम सर नहीं ये होना। वैसे अदीब भी बड़े नालायक होते हैं। ये जो कहना पड़ता है इनको कि दाल नहीं गल रही, तो आप दाल को रात को ही भिगो दें तो फिर वो गल जाए। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले होमवर्क कर लें, बिल्कुल। दाल को भिगो लें। अच्छा गुर्बत से इसका ताल्लुक ये है कि पहले वक्तों में जाहिर है कि दाल पकाने के लिए लकड़ियां, ईंधन वगैरह उसका इंतजाम करना पड़ता था, तो गरीब के पास वो नहीं होती थी ऑब्वियसली। तो फिर गरीब जो है वो अमीर से अंगारा या लकड़ी लेके थोड़ी देर के लिए अपनी दाल पकाने की कोशिश करता था। जब वो लकड़ी खत्म हो जाती थी, अंगारा बुझ जाता था, तो दाल वहीं की वहीं, फिर दोबारा ईंधन का इंतजाम करना पड़ता था। तो इसलिए कहा जाता है कि दाल ना गलना, इसका ताल्लुक भी बराह रास्त जो है वो हमारी यानी एक गरीब माशरे से। सर मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं गरीब जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। बेटा आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अमीर हो भी गए तो कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा आप बचे रहे हो।
जितनी फीस देते हो उतने पाँव फैलाओ। अच्छा जी, अगला है मुहावरा हमारा, जंगल में मंगल होना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंगल में बुद्ध क्यों नहीं होता, जंगल में पीर क्यों नहीं होता? जाहिर है मंगल तो होना ही नहीं चाहिए, इसमें होती भी गोश्त की छुट्टी है। बताओ ना, ये क्या मुहावरा है? सर ये जंगल में- काफिया रदीफ तो नहीं मिलाया हुआ, मंगल जंगल? भाई मिलाया है काफिया रदीफ, लेकिन क्यों मिलाया है? सर गालिबन मंगल खुशी को शायद कहते हैं। हाँ, वैसे तुम करीब हो, ये बहुत इंटेलिजेंट Thank you, sir. Thank ये you, sir. वाकई ये घर से पढ़ने के लिए। ये वाला सर, हाँ, बिल्कुल। वाकई सर ये बहुत इंटेलिजेंट है। घर में इसकी अम्मी सिर्फ इसे कहती हैं कि ले ला जरा तू पोछा में कर दे। यार ये क्या यार कल से तुमने सर इंटेलिजेंट बच्चा ही कर सकता है। नहीं तो नहीं, किसी वाकई उसने बिल्कुल करीब पहुंच गए। असल में मंगल खुशी के गीत को कहते हैं, और जंगल से आमतौर पे वीराना या सन्नाटा जो है उसकी एक मुनासबत होती सर है। इस हवाले से आपको एक मंगल सुनाऊं? जी सुनाइए। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया। ये बड़ा मशहूर मंगल है जी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो कहते हैं कि जहाज जब नीचे गिरा है तो एक अंधेरा हुआ है, फिर एक तरफ से मुझे रोशनी नजर आई है और मैं सही सलामत उठ के उस तरफ को बाहर भाग गया। ये है अल्लाह पाक। अच्छा जी, आज यौम तकबीर है और हमारा प्यारा वतन जो है आज के दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को सलूट पेश करता। क्या कहने से। और हम बड़े दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को बहुत ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको इस वतन के सर पे सलामत रखे। बड़े अजीम हमारे हीरो हैं No doubt. और मोहसिन पाकिस्तान है। हाँ जी। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, उन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम चूंकि ईद के बाद आज आए हैं और ईद के शोज भी हमारे करंट अफेयर से मुंसलिक नहीं होते, हाँ जी। इसलिए अपना जो तैयारा गिरा है पिछले दिनों, जी। उस पे भी इंतहाई अफसोस का इजहार करना बड़ा जरूरी है। चूंकि कोरोना में बचते हुए हम लोग भागदौड़ कर रहे थे और जहाज़ों के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि जहाज में बैठना जो है वो बड़ा खतरनाक हुआ है, कोरोना वायरस है, ये है वो है, हवाई सफर। मैं हैरान हो रहा था अल्लाह ताला की शान पे और सोच रहा था कि देखो इंसान कोरोना से बच रहा है, सीटें छोड़ छोड़ के बैठ रहे हैं जहाज में, उसको स्प्रे कर रहे हैं। वो अमला जो है वो सुना है सारे बेचारे वो वायरस के बचाव का वो जो लिबास होता है वो पहन के तो बेचारे फ्लाइट उड़ा रहे थे। हाँ जी। तो मगर जहाज ही गिर गया। अल्लाह ताला सारे शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जो लोग बच गए हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हमारे लिए ये एक बड़ी खबर थी इस अलमनाक वाक़े में कि हमारे बड़े ही प्यारे बुजुर्ग आर्टिस्ट जनाब मुनव्वर सईद साहब के बेटे पंजाब बैंक के जो हेड थे, CEO और प्रेसिडेंट, वो अल्लाह ताला ने उनको रख लिया, अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी अता की और वो बच गए। उनकी छोटे छोटे फ्रैक्चर्स हैं। मेरी मुनव्वर साहब से बात हुई और वो बेचारे रंजीदा भी बहुत थे, चूंकि वाकई बड़ा दुखी है ये, मगर ये भी साथ हैरानगी का इजहार भी कर रहे थे और तशक्कुर का इजहार भी कर रहे थे कि ये एक मौजज़ा हुआ कि हमारा बेटा बच गया। वो कहते हैं कि जब भी आता था वापस कराची तो उसे ड्राइवर लेने चला जाता था। तो वो ड्राइवर गया है तो जब बेटा हमारा भी अजहर साहब जो हैं वो जब लैंड कर जाते थे तो फौरन हमें मैसेज कर दिया करते थे, मुझे मैसेज करते थे कि मैं पहुंच गया, डैडी पहुंच गया, लैंड कर गया। तो हम मुतमईन से हो जाते थे तो मैसेज नहीं आया तो मैं हैरान और ये वो इस तरह का करते करते वो उनको इत्तला ये मौसूल हो गई कि वो इस तरह जहाज गिर गया है और वो लकीली बच गए हैं और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है उन पे और वो अस्पताल में एडमिट है। अच्छा, एक और जो शख्स बचे हैं जुबैर नामी, वो देखे क्या मौजज़ा है। वो कहते हैं कि जहाज जब नीचे गिरा है तो एक अंधेरा हुआ है, फिर एक तरफ से मुझे रोशनी नजर आई है और मैं सही सलामत
भाग गया। ये है अल्लाह पाक, ये है अल्लाह पाक। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक की ताकत ही है जो सारी कायनात को चला रही है। हमें ये बहुत बड़ा सबक भी मिलता है, बेशक बहुत बड़ा लेसन है इंसान के लिए कि अल्लाह 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 अकबर, और कुछ है ही नहीं। इंसान किसी किस्म का कोई छोटी मोटी सलाहियत रखने वाला भी नहीं है। सब अल्लाह ताला की मेहरबानियां बेशक जहां भी होती हैं। वो इंसान समझता है कि ये मेरी ताकत या मेरी अकल है, मगर वो सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है, उसी के मौजूदात है। बेशक। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात जो करने वाली है वो ये है कि खुदा के वास्ते कोरोना को मजाक ना समझें। खुदा वास्ते ना करें ऐसे, खुदा वास्ते ऐसे ना करें। थोड़ा सा एक दूसरे का साथ दें, थोड़ा सा एक दूसरे का साथ दें। ये जो लॉकडाउन को इजी करने के बाद हमने तमाशा देखा है मार्केटों में, हाँ जी। मेरी बड़ी ही हाथ जोड़ के इल्तमास है अपनी बहनों बेटियों माओं को कि अल्लाह वास्ते जाने दें, घरों में बैठे ना जाएं शॉपिंग के लिए। उस तरह की शॉपिंग जो कुछ चंद महीनों के लिए अगर मौखर कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। उस शॉपिंग के लिए अल्लाह वास्ते ना निकले, घरों में बैठे। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है, आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। देखें कितने को टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट वही हो रहे हैं जो पहले हो रहे हैं, हाँ जी। उससे ज्यादा हो नहीं सकते। यहाँ पे कितनी लेबॉर्टरियां हैं जो टेस्ट कर रही हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने लोग हम वहां पे समा सकते हैं। अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त गुजरांवाला से बेचारे मुझे फोन करके कह रहे थे कि हमें अस्पताल वाले एडमिट नहीं कर रहे और मेरा गले की ये हालत है कि अब मुझसे लिक्विड भी नहीं पिया जा रहा, इसलिए खुदा के लिए किसी अस्पताल वाले से कहो मुझे एडमिट कर। अल्लाह माफ करे, कोरोना की सबसे ज्यादा जो खतरनाक स्टेज है वो है ही ये कि जब हॉस्पिटल्स के पास इतनी अहलियत और सकत नहीं रहेगी कि वो मजीद पेशेंट्स को एक्सेप्ट कर सकेंगे, तो फिर यही होगा कि जी हॉस्पिटल कहेंगे जो अमेरिका में हो रहा है कि आप घरों में आराम करें। बड़ी खतरनाक तो जी इटली में तमाशा देखा है, फुटपाथ पे लेटे हुए मरीज, फुटपाथों पे लेटे हुए। इसलिए ये इतने एडवांस मुल्क और इतने जदीद मशीनरी रखने वाले जो मुल्क हैं, वो अगर सड़क पे आ गए हैं तो हम किस बात की। व्हाट्सएप और फेसबुक के लतीफे, जोक्स, मीम्स ये सारी अपनी जगह, लेकिन कोरोना की जो संगीनी है वो अपनी जगह, वो जहन में रखें। थोड़ा सा अपना अब कोई संजीदगी का मुजाहरा कर ले। हमें 70 साल हो गए हुए हैं कौम बने हुए। अब थोड़ा सा अल्लाह ताला की ये जो आफत है, मैं तो आफत ही कहूंगा कि ये जो इस वक्त हम पे टूटी हुई है आफत, खुदा के लिए इसमें ही संजीदा हो जाए, बिल्कुल इसमें ही डर जाए अल्लाह पाक से। और थोड़ा सा गवर्नमेंट की SOPs जो वजह की हुई हैं या मेडिकल डिपार्टमेंट की, डॉक्टर्स की, उस पे खुदा वास्ते अमल करना शुरू करें। कुछ नहीं हो जाता। कभी कोई अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा किया हुआ है, कोई नहीं मरता भूखा। थोड़ी देर के लिए हाथ खींचे और कोई 2-3 महीने खुदा वास्ते संजीदा होके घरों में बंद होने की कोशिश करें मैक्सिमम। इससे बचें। ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक होती जा रही है, बड़ी सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है, इस बात को समझ। अच्छा, ये कोरोना के हवाले से ही एक बात और बहुत जरूरी है उसका तज़किरा करना कि आपके घर में मेहमान आते हैं जब, तो आप उनको एहतियात का कहते हैं, उन पर कोई स्प्रे करने की कोशिश करते हैं, उनके जूतों पे, उनके लिबास पे, तो वो माइंड कर जाते हैं। ये माइंड करने वाली बात नहीं है। मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि ये जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर मैं स्प्रे कर रहा हूं मुझे उससे डर है। हो सकता है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मुझसे आपको ट्रांसफर हो जाए। इसलिए इस बात को बिल्कुल कोई इज्जत नफ्स का मसला ना बनाए, इसको कोई मतलब प्रेस्टीज मैटर ना बना ले, लड़ाई झगड़े वाला कि जी उसने मुझसे हाथ नहीं मिलाया, मैंने उसने पीछे कर लिया। बिल्कुल ठीक किया अगर उसने हाथ पीछे कर लिया, बिल्कुल ठीक किया उसने अगर आप पे स्प्रे किया, अपने आप पर भी किया। उसका तरीका ये हो सकता है कि मैं कहता हूं अगर आपको ये डर है कि दूसरा बंदा माइंड कर जाएगा, अगर आपके पास स्प्रे है, अगर आपके पास सैनिटाइजर है, तो आप उसके हाथ को सैनिटाइज करने से पहले उसकी दिल आजारी से बचने के लिए पहले खुद को सैनिटाइज कर ले, ताकि उसकी दिल आजारी भी ना। यार मैं तुम्हारी परजाई के साथ गया हूँ, अपनी एक सिस्टर है हमारी, उनकी तरफ। यार बात सुनो, मुझे याद आया ईद की रात सुना तुम्हारे घर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, सुना भाभी ने वो सैनिटाइज किया, वो सैनिटाइज। सही बात है, ज्यादती किस बात पे? ये झूठ है, झूठ है। अच्छा
मैं गया अपनी एक सिस्टर की तरफ तो परजाई तुम्हारी जरा बेचारी चुके मॉडर्न खतून है, उसने जाते ही किया हेलो, तो उसने आगे से नहीं हेलो किया, सिस्टर मेरी नहीं करते। हाय 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 हाय, वापसी पे सारी रात हमारी परजाई ने मेरी वो चम लाई है कि तेरी ये पैना है ही नहीं चंगी है, देख जरा मेरे नाल हाथ नहीं समलाया। मैं कहता रहा हूँ, मैंने कहा बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि वही तुमसे बच रही थी, शायद वो तुम्हें बचा रही थी। और फिर भाभी ने कहा कि नहीं उसी को होना है जरूर। देखो जरा, अभी मैं कह रहा था कि कोरोना को सीरियस नहीं, और अभी उसने इस पे कॉमेडी शुरू कर। मैं तो तुम्हें अपना दिल दोस्त वाकया सुना रहा हूँ और तुम उस पे लाफ्टरबाजी कर रहे हो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये पूछा गया, सबसे बड़ी इखलाकी नजासत क्या? जवाब मिला तकब्बुर। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।